students, dear friends, in last video we have studied about the breathing in human beings. Okay, in human beings we have studied that human breathe through the nasal cavity. Then there is a you can say the pharynx is there, that is known as a windpipe, and the air which they inhale through the nasal cavity goes through the windpipe into the lungs, and it is absorbed by the lungs, and the lungs provide it into the blood vessel, and from the blood vessels the carbon dioxide which is released by the breakdown of food material thrown out, or you can say pass out through the supplied to the lungs, and through the lungs they supplied or you can say they exhale through the windpipe or through the nasal cavity. Means both the works are done by nasal cavity, the outer organ in our body which is a nasal cavity, through which we can breathe the air, the useful air, that is the oxygen, and we exhale the harmful, that is carbon dioxide, which is released during the respiration process. Okay, now students, in this video I am going to explain about the breathing in other animals. Okay, other than the human beings. We have done the human beings. Now many animals are there which have the different respiratory organ than the human beings. ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे ऐसे हैं एनिमल्स, दे हैव द लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन, but you can say many other type of animals are there which have the different organ for the breathing. Okay, so in this video we are going to study about the breathing in other animals. In your syllabus the animals which are given there are the cockroach, earthworm, fish. Okay, these are the some animals given to you in your syllabus, how they breathe, and the respiratory function, how the respiratory function occur in these animals. Okay, many type of animals like elephant, lions, yeah, you can say cows, goats, frog, lizards, snakes, birds, they all have the lungs in their chest cavity. Means they breathe through the lungs like the human beings. ये कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, ब्रीदिंग के लिए लंग्स ही होते हैं. जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स रहते हैं, वैसे इनके अंदर भी क्या रहते हैं, लंग्स रहते हैं फॉर द रेस्पिरेशन. ओके, इस प्रोसेस के लिए लंग्स होते हैं. लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट विच यू हैव गिवन टू यू, दैट इज द cockroach. You have given cockroach, है ना. Cockroach, this is an animal which have the outer opening in their body. Cockroach के अंदर, I am going to try to make the diagram of cockroach. That is not perfectly fine. ये पूरी तरह से सही नहीं है cockroach का, लेकिन तुम इससे समझ सकते हो. इसके अंदर क्या रहता है, रेस्पिरेटरी organ में क्या है, they have the spiracles in the outer opening of it. They cockroach have the outer skeleton which we have studied in the 6th class also. For the breathing, what they have, the cockroach have the outer skeleton. उनके जो बॉडी के अंदर skeleton होता है वो outer होता है. हमारी बॉडी में कैसा रहता है, इंटरनल skeleton रहता है, जिससे मसल्स जुड़ी भी रहती हैं और उससे हमारा पूरा प्रोसेस होता है. लेकिन कॉकरोच के अंदर कैसा रहता है, skeleton आउटर साइड में रहता है. तो इसके जो skeleton का साइड है, इनमें ओपनिंग रहती है ना. इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स. क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को, स्पाइरेकल्स. So they have the opening that is known as the spiracles. Okay, opening is known as the spiracles. Spiracles. They breathe through the opening in their outer skeleton. इसके outer skeleton में ये जो outer part होता है, इसमें जो opening होती है, इनको बोलते हैं spiracles. इसके थ्रू तो ये क्या करते हैं, they exchange the gases. एक्सचेंज में क्या करेंगे, दे टेक इन द ऑक्सीजन एंड रिलीज द CO2. ऑब्वियसली इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म exchange the gases in their body during the breakdown of food. So we can say
they take the oxygen through these spiracles and they release the CO2 through these spiracles. From these spiracles, when they take the oxygen, or you can say air which are used by the animals, they goes into the नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. इसके अंदर एक ट्यूब्स का नेटवर्क रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया. क्या बोलते हैं इसको, ट्रेकिया. तो ये कहाँ पे जाएगा, स्पाइरकल से. ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो जाल बना हुआ है ट्यूब्स का, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकिया. ट्रेकिया. ये ट्रेकिया के थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का. वो जाएगा तो ओपनिंग तो क्या रहती है, यहाँ से जो ट्रांसफर, जो रिलीज होना या उसके अंदर आना किससे हो रहा है, ओपनिंग से हो रहा है, जिनको बोलते हैं स्पाइरकल्स. और ये एक्सचेंज किससे करते हैं, द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, दैट इज नोन एज द ट्रेकिया. ट्रेकिया के थ्रू क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस इन विच बाय विच द cockroach exchange the gases. So for the exchange of gases they have the tube like structure network that is known as the trachea in the cockroach. Okay, oxygen in the these type of trachea, oxygen rich air rushes through the spiracle into the tracheal tubes, diffuse into the body tissue and reaches every cell of the body. ये क्या करती हैं, obviously they rushes through the spiracle and the tubes, and from the tubes they have the cells. Obviously it is multicellular. cell make the tissue में क्या हो जाती है, diffuse हो जाती है. diffuse मतलब उसके अंदर चले जाना, mix हो जाना. diffuse into the tissues and supply the energy to the all part of the body. And similarly the carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and move out through the spiracle. Same thing is happen in the for the carbon dioxide also. They release the CO2 in the tracheal part and they thrown out through the spiracles. इसको बाहर भेज दिया जाता है. You can say these air tubes or tracheal are found only in the insects, not in the another group of animals. ये सिर्फ किस में मिलता है, इंसेक्ट्स में मिलता है, किसी बाकी ऑर्गेनिज्म में हम इसको नहीं होता है ये. तो इसमें स्पेशली तुम्हें दिया हुआ है कि किसके अंदर होता है इस टाइप का respiratory organ. This is into the cockroach. Okay, so this is about the cockroach which is given in your syllabus. Now we are going to study about the another animal that is given to you, the earthworm. You all know about the earthworm which is known as the farmer's friend, है ना. ये friend of farmer कहलाता है ये, because it eat the soil from the earth and they release the nutrients, soil with the nutrients, है ना. जब वो वेस्ट निकालता है उसमें भी सोयल होती है और उसके साथ वो न्यूट्रिएंट्स निकालता है. एंड इट मेक द सोयल फल्फी बाई यू कैन से प्लफिंग इट. और उसको क्या कर सकता है, चेंज करता है, टर्न करता है बाई टर्निंग द सोयल को टर्न करता है नीचे से खोद के इसके जो बिल होते हैं उनमें से, और वो क्या कर लेता है, उसको फल्फी बना देता है. इसलिए ये फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है इसको. तो ये हमने पहले पढ़ लिया था. दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड अदर ऑर्गन्स इन देयर बॉडी. दे ब्रीथ थ्रू द स्किन ओनली. अपन ने कई बार देखा होगा इन द रेनी सीजन वी हैव दैट टाइप ऑफ रेप्टाइल्स, है ना. इस तरह के रेप्टाइल अपन देखते हैं. व्हेन वी आर गोइंग टू टच इट वी फील सम यू कैन से मॉइस्ट एंड स्लिमी. उसको टच करते हैं तो गीला गीला सा इस टाइप का अपने को क्या लगता है, वो ये अर्थवर्म लगता है अपने को. तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो स्किन होती है अर्थवर्म की, ये कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है ना. एंड गैसेस कैन एक्सचेंज पास थ्रू देम स्किन ओनली. ओके, इनके अंदर स्किन से ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है. थ्रू द फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ए ह्यूमन बींग्स. जबकि फ्रॉग जो होता है उसके अंदर, ये तो किसकी बात हो रही थी, अर्थवर्म की बात हो रही थी. इसमें कहाँ से करेगा ये, इट ब्रेथ थ्रू द स्किन. ये स्किन के थ्रू करता है. स्किन के थ्रू एक और एनिमल है, कौन है, फ्रॉग. फ्रॉग में क्या होता है, इट ब्रेथ थ्रू द स्किन एज वेल एज लंग्स लाइक द ह्यूमन बींग्स. फ्रॉग का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसमें लंग्स भी होते हैं जैसे हमारे अंदर होते हैं. एंड आफ्टर दैट यू कैन से दे ब्रेथ थ्रू द
स्किन ऑल्सो, ये अपने स्किन से भी क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. व्हेन दे आर इनसाइड द वाटर दे टेक द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर थ्रू देयर स्किन. वो स्किन के थ्रू ही क्या करते रहते हैं, रेस्पिरेशन करते रहते हैं. जहाँ पे पानी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, या कह सकते हैं कि वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, तो उस कंडीशन में किसके थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू. तो इसके अंदर दोनों ऑर्गन काम करते हैं. कौन से, स्किन एज वेल एज द लंग्स लाइक द ह्यूमन बींग्स. गॉट इट. So this is about the earthworm, and you can say we have studied about the frog also through this. Now you have given the fish. You all know about that the fish have the separate respiratory organ that is known as the gills. Fishes जो रहती हैं, they breathing under the water. उनके अंदर ब्रीदिंग कहाँ होती है, पानी के अंदर होती है. तो पानी के अंदर obviously there is no extra oxygen is there. The oxygen is dissolved into the water only. वो किसके अंदर रहती है, in the form of H2O. And we cannot separate out the hydrogen and oxygen from the water molecule by any physical and chemical method. कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपन इस तरह से सेपरेट कर पाए. फिजिकली पॉसिबल नहीं है इसको सेपरेट करना. सिर्फ किसमें, फिशेज के अंदर एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ऑर्गन होता है इनकी बॉडी के अंदर, थ्रू दैट दे कैन सेपरेट आउट द डिजोल्व ऑक्सीजन इनटू द वाटर एंड दे कैन टेक द ऑक्सीजन ओनली फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर गिल्स. गिल्स के थ्रू सिर्फ क्या लेती हैं, वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं. ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसमें होती है, फिशेज के अंदर होती है. फिशेज की जो बॉडी होती है उसमें जो गिल्स होते हैं, वो गिल्स क्या करते हैं, दे टेक द वाटर, और जब ये वाटर लेते हैं दे यूज द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर एंड दे थ्रो आउट, ब्रीथ आउट द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन को उसमें से निकाल देंगे और वाटर को क्या कर लेंगे, सॉरी ऑक्सीजन को ये क्या कर लेंगे, ब्रीदिंग में काम में ले लेंगे. तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, फिशेज के अंदर पाई जाती है. तो हम कह सकते हैं the gills in the fish help into use the oxygen dissolved in water, or you can say gills are the projection of the skin. वो स्किन की क्या रहते हैं, प्रोजेक्शन रहता है, through which the fishes take the oxygen dissolved into the water, and after that they supply that oxygen. The gills supplied the into the blood vessel. वो जो gills होती हैं they attach with the गिल्स किससे रहेंगी, ऑब्वियसली दे अटैच विद द ब्लड वेसल्स. सो दे सप्लाई द ऑक्सीजन टू द ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल में क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को सप्लाई कर देंगी. तो ये प्रोसेस हुआ किसके अंदर, दिस इज द प्रोसेस इनटू द बाय विच द फिशेस ब्रीथ इनटू द वाटर. वो वाटर के अंदर क्या करती हैं, ब्रीदिंग करती हैं. ओके. आफ्टर दैट डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर. क्या तुम्हें पता है प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं या नहीं? यस. All the living organism can respire. Obviously, the plant is also a living organism. Plant भी क्या है, एक living organism है. So, breathing in the plants. Okay, plants also respire. So your answer will be yes. Answer will be yes. Plants also respire. They also need the oxygen for the breathing. Okay. This is the while they use the CO2 for the respiration, for the breakdown of food, or you can say for the supply of energy, and we know about that they use the carbon dioxide for making the food, है ना. Plants are the producer of the food, or you can say they make their own food, so they are known as the autotrophs. क्या कहलाते हैं plants? Autotrophs. And they use the carbon dioxide and water molecule in the presence of sunlight, and they have the chlorophyll, that is the pigment found in the green leaves of the plant, by which they make the glucose, that is the food material, C6H12O6, and in this process they release the oxygen. वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. बट इन द ब्रीदिंग प्रोसेस, जब वो ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग में दे ऑल्सो नीड द ऑक्सीजन.
इसको भूलना नहीं है। ऑक्सीजन उनको भी ब्रीदिंग के लिए चाहिए होती है जैसे हमें चाहिए होती है। हम ये नहीं कह सकते दे टेक द ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, दे टेक द ऑक्सीजन फॉर मेकिंग द फूड ओनली। फूड बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ब्रीदिंग के लिए उनको भी क्या चाहिए, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दे ब्रीथ इनटू द ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन क्या करते हैं, एयर से लेते हैं एंड दे गिव आउट द, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी वो रिलीज करते हैं इनटू द सेल। In the cells, oxygen is used breakdown of the glucose. Obviously सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए ये यूज में ली जाती है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन द अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म में होता है, सेम प्रोसेस अकर्स इन द प्लांट्स ऑल्सो। ओके, प्लांट और यू कैन से इन द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। अपने को पता है दे आर प्लांट्स ऑल्सो मेड बाय द सिंगल यूनिट दैट इज नोन एज द सेल। ईच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस। ब्रीदिंग हर एक सेल में होगी एंड ऑब्वियसली दे यूज द ऑक्सीजन, ईच सेल यूज द ऑक्सीजन एंड रिलीज द CO2। मीन्स दैट प्रोसेस विच इज अकर इन अदर ऑर्गेनिज्म अकर इन द सिंगल सेल ऑफ एनी ऑर्गेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल में भी ये प्रोसेस होता है। एंड दे हैव द, फॉर दिस प्रोसेस दे हैव द टीनी पोर्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लीव्स। लीव्स के लोअर पार्ट में अपन देखेंगे दे हैव द टाइनी स्पोर दैट इज नोन एज द स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा के थ्रू दे एक्सचेंज द गैसेस, सो दे हैव द organ through which they exchange their gases। and you can say like the other living organisms, living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy। Roots take up the air from air space प्रेजेंट बिटवीन द सोयल पार्टिकल। जैसे कि बाकी ऑर्गेनिज्म करते हैं वैसा द रूट्स ऑफ द प्लांट्स की मान लो रूट्स हैं, दे ऑल्सो रेस्पायर एंड दे टेक द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। फ्रॉम वेयर दे टेक द ऑक्सीजन, दे टेक देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द पार्टिकल्स, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मान लो ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है दे आर नोन एज द एयर गैप्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, एयर गैप्स बोलते हैं। और जिसके अंदर एयर भरी हुई रहती है तो दे यूज द एयर विच आर फाउंड इन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के बीच में भरी हुई रहती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। सो दे हैव द ऑर्गन्स by which they take the oxygen for the breathing। Obviously they breathe through the roots also and they breathe through the leaves of the plant, also leaves also। तो लीव्स में भी क्या रहता है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 वो देते हैं, दे एक्सचेंज द गैसेज थ्रू दिस प्रोसेस। तो सिमिलरली the process occur in the plants and animals by which they take the oxygen of the air and they remove the or release the carbon dioxide into the environment। But the difference is that in the plants they use the carbon dioxide of the environment for the making of food also। Okay, so they are autotrophs, they make their own food, so they use the carbon dioxide of the environment for making the food into the leaves। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, the process is known as the photosynthesis। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, photosynthesis बोलते हैं। ठीक है, तो this is we can study about that process। and students think about the another point that if you overwater any plant। अगर आपके पास कोई प्लांट है, आपने क्या रखा हुआ है, एक आपके पास ये क्या है, ये मान लिया कोई भी अपने पास क्या है, पोटेड प्लांट है, ये अपन ने एक प्लांट लगा के रखा हुआ है। ओके, if you overwater this you have the soil inside it and they have the minerals and any particles inside it। okay, if you overwater it, अगर आप इसमें पानी 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 भर दोगे, do not have any space to release the water, तो इतना ज़्यादा पानी होने से क्या होगा, the air between the particles come out because of the filling of water। water है वो हैवी है उससे, तो water क्या हो जाएगा, वहाँ पे water तो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, H2O, और O2 है वो कैसे निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो अंदर क्या जा रहा है, वाटर H2O है ना, और बाहर क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, मीन्स इन दैट कंडीशन
the condition you can say the plants are not able to breathe properly because they do not have sufficient amount of oxygen into the soil. So the roots do not respire properly and because of that the plants will be dead. वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वो plants क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, destroy हो जाएगा, dead हो जाएगा. So you can understand that obviously the plant root also need the oxygen for the plant. Not only the roots, the leaves, means the plant need the oxygen for the respiration. अपन ये समझ सकते हैं इसको. So you can say that the respiration is a vital biological process. ये मतलब पूरे biological process मतलब livings के लिए respiration जरूरी है ना. रेस्पिरेशन है तो वो लिविंग्स हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. ऑब्वियसली ऑल द एनिमल्स नीड द ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल. ब्रीदिंग उनके लिए जरूरी होती है. सो दिस इज अबाउट द chapter. We have done all the points of this chapter. I hope you understand, students, and we will do the exercise of this chapter also. Okay, in next video we will do the summary and the exercise of this chapter which you have to do. Students, if the books are available to you, then you have to read each and every line of the chapter, and you feel any difficulty you can ask to me in the group. Okay, thank you.